Student, I am Pramod sir of your math teacher. Student, today I am going to discuss about the question number second of exercise 4.1. स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के. सो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन इज check whether the value given in the brackets is a solution to the given equation or not. Student, question is asking you whatever value is given of the variable is the solution of the equation or not. ये जो वेरिएबल के वैल्यू हर इक्वेशन में दिए हुए हैं, ये इस इक्वेशन के सलूशन है या नहीं है, इसको हमको बताना है स्टूडेंट. सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट? स्टूडेंट, यू आर थिंकिंग दैट व्हाट इज द सलूशन ऑफ द इक्वेशन. स्टूडेंट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन माय लेक्चर क्लास about the solution. A number which satisfied an equation is called the solution or root of the equation. ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, दैट इज द सोल्यूशन. और स्टूडेंट, इसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं रूट भी बोलते हैं, ROOT. सोल्यूशन बोलें या फिर रूट बोलें, बोथ आर सेम स्टूडेंट. This is the solution student. A number which satisfied an equation is called the solution or root of the equation. But solution है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा स्टूडेंट? By the given value of the variable student, by the given value of the variable we satisfied the equation. हम इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराते हैं. If my equation is satisfied, it means the given value is the solution of the equation, otherwise not. So student, after solving the equation, at last we can say that my equation that the given value of the variable is the solution of the equation or not. So student, you are thinking that how can we satisfy the equation? So student, we want to tell you that on putting the given value of variables in LHS, if we get the value equal to RHS, then my equation is satisfied, otherwise not student. By the given value of the variable, दिए हुए वेरिएबल के वैल्यू से मेरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, अन्यथा नहीं हुआ. So student, we are doing here already we have solved a question here student. You are seeing that I have taken first question. This is student, n plus 5 is equal to 19 and n is equal to 1 student. Student, in solution you are seeing that given equation is n plus 5 is equal to 19. This is given, equation is given in the question. And in this equation student, you know that n plus 5 is the LHS. क्यों LHS है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए LHS है. एंड 19 इज इन द राइट हैंड साइड में है. So student, LHS is n plus 5. Now we are going to satisfy the equation by the given value of the variable. वैल्यू क्या है स्टूडेंट? n is equal to 1. आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है n is equal to 1. तो इस n is equal to 1 से मैं इक्वेशन को सेटिस्फाई कराऊंगा. तो आप देखिए, इक्वेशन में जहाँ भी n होगा वहाँ पर आप क्या रखेंगे? वी पुट 1, because the value of n is equal to 1 given in the question, in the equation. So student, you are seeing in your equation that in the left side n is present. So we put the value of n is equal to 1 in the left side.
in the LHS side of the equation. So student, when you will put on the place of n is equal to 1 and 5 is already given, then you will add, at last you will get 6 student. 6 जब आपने LHS में इसको रखा और सॉल्व किया तो आपको क्या मिला? 5 + 1 6 हुआ स्टूडेंट, एंड 6 इज इक्वल टू नॉट 19 स्टूडेंट. आप देखिए ये 6 जो है 19 के इक्वल नहीं है. 6 19 के इक्वल नहीं है क्योंकि मेरा RHS जो है क्या है? 19 है, और LHS को मैंने सॉल्व किया तो क्या आया? 6 आया. तो 6 19 के इक्वल नहीं है. इसका मतलब जो n का वैल्यू 1 था, इस n के वैल्यू 1 को इक्वेशन में रख करके जब मैं सेटिस्फाइड कराया तो मैंने देखा कि LHS का जो वैल्यू है वो RHS के वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा है. आप देखिए यहाँ पर मैं राइट किया हूँ, LHS इज इक्वल टू नॉट RHS. सो एट लास्ट वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है स्टूडेंट. दिस इज माई आंसर. In this way student, you can take the second question. Second is student 7n plus 5 is equal to 19 and n is equal to -2 student. अब स्टूडेंट ये n इज इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर नॉट, ये मुझको बताना है. सो स्टूडेंट, फर्स्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन and we satisfied the equation. If my equation is satisfied by this value, it means n is equal to -2 is the solution of the equation, otherwise not student. So student, LHS क्या है मेरा? LHS स्टूडेंट मेरा जो है वो 7n + 5 है. अब देखिए, और n का वैल्यू क्या दिया है? -2. तो 7 और 7 और n के मिडल में कोई साइन नहीं है, क्या है? मल्टीप्लाई है. और n के प्लेस पर क्या राइट करना है हमको? -2 राइट करना है. आगे +5 इज ऑलरेडी गिवन. 7 2 जा -14 स्टूडेंट, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट जो आता है वो निगेटिव आता है. निगेटिव. -14 + 5. नाउ सॉल्व इट स्टूडेंट. आई हैव टोल्ड यू that when we add a positive and a negative integer, both will not be add, only subtract. वो ऐड नहीं हो सकते, हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होते हैं. तो 14 - 5 स्टूडेंट क्या होगा? 9 होगा. एंड यूज द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. जो दोनों में नंबरों में जो बड़ा होगा उसी का साइन में यहीं यूज करूँगा. सो स्टूडेंट 14 इज ग्रेटर देन 5. ओनली सी द नंबर, नॉट साइन स्टूडेंट. 14 is the greater of 5, so we use the sign negative before the n. 9 student. So student, -9 is the value of LHS. LHS का वैल्यू मेरा क्या है स्टूडेंट? LHS का वैल्यू आया -9 स्टूडेंट. LHS का वैल्यू 9 एंड RHS का वैल्यू स्टूडेंट, RHS का वैल्यू आप क्या देख रहे हैं? 19 यहाँ देख रहे हैं. 19 है स्टूडेंट, 19 है. तो क्या -9 और 19 बोथ आर सेम? दोनों इक्वल है स्टूडेंट? योर आंसर इज नो सर. नहीं है सर, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है. इट मीन्स -9 इज नॉट इक्वल टू 19. -9 19 के इक्वल नहीं है. कहने का मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS स्टूडेंट. LHS RHS इक्वल नहीं है. सो द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू -2 इज नॉट द सल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इसका सल्यूशन नहीं है. एट लास्ट आप राइट करेंगे कि -2 इज नॉट द सल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का सल्यूशन नहीं है. आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. Now I am taking third question student. Suppose that we are taking here student
ई क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ई वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, दैट इज 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 एंड स्टूडेंट p इज इक्वल टू, यू आर सेइंग हियर p इज इक्वल टू -4 स्टूडेंट। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट p का वैल्यू जो -4 है इसको हम पुट करेंगे। इफ माई इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मीन्स LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू, then p is equal to -4 is the solution of the equation, otherwise not student. So student LHS मेरा क्या है, आप देखिए LHS मेरा क्या है, LHS स्टूडेंट मेरा है 4p - 3। अब इसमें आप रखिए इसका वैल्यू -4 का, तो 4 और p के बीच में कोई सैनिध क्या है, मल्टीप्लाई है। p के प्लेस पर आप क्या राइट करेंगे, -4 राइट करेंगे। -3 इज ऑलरेडी गिवन, सो स्टूडेंट व्हेन वी सॉल्व इट वी गेट 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, this 4 is positive and this 4 is negative, so product will be negative student, minus and -3। student you are seeing here that कि both numbers are negative, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट। 16 और 3 क्या होगा, 19 हो जाएगा। 19 और साइन किसका यूज होगा, साइन हमारा निगेटिव यूज होगा स्टूडेंट, निगेटिव ही यूज होगा। -19 आ गया। इट मीन्स जब आपने LHS को लेकर के सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आया, -19 आया। और मेरा LHS क्या दिया स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट RHS क्या दिया हुआ है, RHS इज 13, RHS इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है। सो यू कैन से दैट -19 and 13 are not equal. So you can say that LHS is not equal to RHS. LHS RHS के इक्वल नहीं है। It means P is equal to -4 is not satisfied the equation student. So student you can say that P is equal to -4 is not the solution of this equation. In this way student you can take more questions, more equations like B, D, F, C and you can solve it. So student you can take the screenshot of one questions and according to this question you will try to solve the other question student. So thank you student.